Hello students. So today we will start our first explanation of the chapter of your social science subject from the book history, right? So we will start from this chapter. Chapter names is what, where, how and when. But before coming to the explanation part of the chapter, I would ask you to take a note. Means you have to sit along with the blank sheet and pen, and you have to make notes along with it. Okay. So first of all, this chapter names is what, where, how and when. So basically this chapter is introduction to the history, like what kind of people used to live in the past, what usually they eat, what type of things they do for their survival, where they actually live. These things we will come along with this chapter. I mean, we will be getting the knowledge from this chapter, right? So if we talk about that, where did people live? So basically, if I tell you what is the essential source for us to live, we can say water. Water is the most essential thing for us to live. But in those days, usually we don't have these type of facilities which we are living with today, right? Like we are already having our pipe connection, water connection in our house, but at that time these facilities were not available. So the people, for their survival, used to live along the banks of the river. ठीक है, बैंक्स ऑफ द रिवर, व्हाट डज इट मीन? बैंक्स ऑफ द रिवर से मतलब है कि रिवर के आसपास, रिवर के किनारे, नॉट एग्जैक्टली। अब एकदम आप ये नहीं समझना कि बिल्कुल रिवर के पास, बट येस, बहुत पास, रिवर के बहुत पास में, राइट? सो some of the people who lived here were skilled hunter gatherers. Hunter gatherers means people who gathered their food, and it was their primary activity because for food they have to do hunting, and of course for having the food at any time they have to collect as well. So that's why they were known as hunter gatherers. Also there's no need to mention that they also used to hunt animals as well, right? So basically, not only along with the banks of the river, some of the people also live near forests, right? Then uh, further, people lived as settled agriculturalists. Means slowly and slowly, when people were getting the information or getting the knowledge of how they have to grow crops or how they have to rear animals, so along with this knowledge they start living as settled agriculturalists, right? So we will talk about some different places. Like first, I have already told you about the banks of the river. So banks of the rivers में हम क्या बोल सकते हैं? People living near Narmada. They were still, as I told you, they were skilled hunter gatherers and they depended on fruits, berries, nuts, or even animals to survive, right? Then people living in Suleiman and Kirthar hills. So Suleiman and Kirthar hills is basically a place which was near Indus river. Okay, so at that time, Suleiman and Kirthar right now nowadays is in Pakistan, but at that time India and Pakistan were not, sorry, but at that time India and Pakistan, but at that time India and Pakistan were not separated, right? Because we are already talking about when people actually just started to find their livelihood. They were not exactly settled, they were on the approach, they were on the way to be a settled, very well settled human beings, right? So if we talk about people living in Suleiman and Kirthar hills, सुलेमान एंड किरथार हिल्स मैंने जैसे कुछ पॉइंट्स शो किए आपको, दैट इज़ 8,000 years ago men and women begin to grow wheat and barley over there. Basically from in सुलेमान एंड किरथार हिल्स हमको वहाँ पे एविडेंस मिले. एविडेंस किस चीज़ के? कि वहाँ पर ऑन दैट प्लेस पीपल फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley,
right? And it happens about 8,000 years ago. Then they also began rearing animals like sheep, goat, cattle, and lived in villages, right? And then Garo Hills. Garo Hills is located in the northeast of India, and Vindhyas. Vindhyas is located in central India. So, from there, what evidence we have got that in Garo Hills, agricultural development in this area was seen, right? Agriculture was developed here. We have seen the evidence of developed agriculture, and the places where rice was first grown are to the north of Vindhyas. That means the evidence of rice, that rice was first grown, was the location which was north of the Vindhyas. Then coming to the next part, settle settlement near the coming to the next part, settlements near rivers means Indus and Ganga. We have already talked about Narmada river. We have already talked about that people used to live near forest, and they also lived as settled agriculturists. Same, people live near Indus and Ganga. That means there many of the evidence has been found about the settlements, that many people have there on the banks of river Indus. What does it mean? Means about 47, in your book it is given that about 47 years ago, 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on banks of river Indus. Means evidence have been found about the cities, well developed cities, that some of the earliest cities evidence have been found on the rivers of bank Indus, right? Then later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga. Means यहाँ पर हमें क्या एविडेंस मिला कि गंगा के आसपास, दैट मीन्स इफ आई particularly tell you about the city, that city is Magad and south of the Ganga, right? And its ruler were very powerful and set up a large kingdom. अगर आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते हैं, हिस्टोरिक सीरियल्स, देन यू मस्ट हैव सीन इन द सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य. धनानंद किंग के बारे में जाना होगा, Chandragupta Maurya, Chanakya. So basically these rulers were of where Magad dynasty, right? Then after that we will talk about movements of the people. Movements of the people. Basically, in search of livelihood, people used to move from place to place, right? Then there were many reasons. I mean, there were many reasons for which people used to move from one place to another. They were not actually permanent. They have not found their permanent settlement because of some reasons. Reasons were, some of the peoples were used to move from for in the search of livelihood. Then some of the people faces some difficulties to live that in that place because of some natural disasters or because of some natural calamities like floods or drought. Then after that we can say movement of armies conquering other lands. How we can say that all of us have seen many movies and many historic serials. Like in those serials, what we have seen, that one empire king used to go to fight to the other empire just to acquire that empire, right? So their armies used to move from one place to another so that they can conquer other lands. Then merchants traveling for trade. Merchants traveling for trade means, if suppose some of the people found some thing, for that they can get some earning, right? So they used to go from place to place to sell that thing. Then religious teachers walked from villages to village for spreading their religious messages, right? Then movement for adventure, discoveries to new places. These were also the reasons for movement of the people. Then if we talk about names of the land, means how does our country has got its name, that is India and as well as Bharat. Basically there's a story behind it, or we can say there's something which we should know.
that how our country has get its name, that is India. Suppose if we talk about India, then this word has came from word Indus. And what I have told you about Indus a moment ago, that Indus is a river, right? So basically this word has come from the river, name of Indus river, India. And Indus को if we talk about in other language, इंदस को इन संस्कृत में हम सिंधु भी बोलते हैं, ठीक है. देन बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, इरानियंस एंड ग्रीक्स, जो ईरान के लोग थे और जो ग्रीक्स के लोग थे, एक्चुअली होता क्या था पहले एकदम बहुत, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी ईयर्स अगो, राइट, जब सब कंट्रीज सेटल्ड नहीं थी. एक्चुअली ये सब कंट्रीज जो थी वो सेटल्ड होने के अपने अपने तरीके ढूंढ रही थी, राइट. सो इरानियंस हुए या ग्रीक पीपल हुए, तो उन्होंने भी, उनमें से भी कुछ पीपल ने मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मूवमेंट्स किया था पीपल ने अपने अपने किसी ना किसी रीजंस की वजह से. तो इरानियंस एंड ग्रीक्स जो थे वो इंदस रिवर के फैमिलियर थे, राइट. एंड दे यूज टू कॉल इंदस रिवर एज हिंदोस और इंदोस. होता है ना, हम सबकी लैंग्वेज में एक्सेंट में डिफरेंस आ जाता है कि हम जैसे जैसे अपनी सिटी से भी, इवन हम यूपी से बाहर निकलते हैं तो यूपी से बाहर निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि दूसरी स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, राइट. तो वे दे यूज टू स्पीक, तो कुछ वर्ड्स बहुत डिफरेंट वे में भी बोलते हैं. सेम इन द केस ऑफ इरानियंस एंड ग्रीक्स. तो इरानियन और ग्रीक जो थे वो इंदस रिवर को हिंदोस और इंदोस बोलते थे. एंड उसी तरह क्या हुआ कि जो हमारी इंदस रिवर थी उसका जो ईस्ट पार्ट था, मतलब इंदस रिवर हमारी यहाँ पर फ्लो कर रही है, तो उसके ईस्ट साइड में जो भी पूरी लैंड थी उसको किस नाम से रिप्रेजेंट करते थे वो लोग, इंडिया, राइट. एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट भारत, तो भारत का कैसे आया, भारत वॉज नेम, द नेम भारत वॉज मैंशन इन दी ऋग्वेद, है ना. आप सब ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा डेफिनेटली. तो बेसिकली पहले क्या हुआ था कि जब ये बुक्स लिखी गई थी, जब ये वेदास लिखे गए थे, ऋग्वेद वगैरह, तो ऋग्वेद जो कि कब लिखा गया था, अराउंड 3500 ईयर्स अगो. ऋग्वेद में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये एक ट्राइब की तरह हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो थे लोग, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, उनको किस नाम से, उस ट्राइब को किस नाम से जाना जाता था, भारत. मीन्स ऋग्वेद में उस ट्राइब को भारत के नाम से मेंशन किया गया. तो दैट्स वाई हमारी कंट्री को क्या क्या नाम मिले, एक इंडिया एंड भारत. ओके, देन if we talk about sources, that how we have got to know about the past, ठीक है. So basically what happened is there are some people who are basically dedicated towards the study of several sources which tells us about the past, right. Those people are known as, in native language or we can say in technical language as well, archaeologists or historians. These are the people who study several sources to tell us about the past. Okay, so basically there are two sources which tells us about the past. One is archaeological source and other is literary. Means archaeology जो source है वो क्या बताता है, पहले आर्कियोलॉजी की एक मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. व्हाट डज इट मीन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स. मीन्स क्या हुआ, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक स्टडी किस पर की जाती है, जो ह्यूमन्स पे की जाती है और प्री हिस्ट्री पे की जाती है. तो और प्री हिस्ट्री पे कैसे, प्री हिस्ट्री वो चीज़ होती है बेटा जो आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं मिली है, आपको एक्चुअली ढूंढनी पड़ी है ना. कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि एग्जैक्टली पास्ट में कैसे ये चीज़ें आई, किस तरह से ये चीज़ें इन्वॉल्व होकर हमारे सामने हैं. तो दे यूज़ टू स्टडी अबाउट दिस थिंग्स. तो वो ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं. और कैसे स्टडी करते हैं, थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स. एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी जगह, पर्टिकुलर जगह को डिग करते हैं, राइट. एक्सकेवेशन मतलब उसको और ज़्यादा उसको डिग करके उस साइट को हमारे पास, हमें पता चला कि हाँ ये बहुत साल पहले की कोई साइट मिली. तो उस साइट पे जाके हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं,
इवन वहाँ पर हम उस फ्लोर के आसपास भी चीज़ों को हम फ्लोर को खोदते हैं, खुदाई करना, एक्सकेवेशन, है ना। एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स मीन्स जो भी फिजिकल रिमेन्स हमें कुछ भी मिल रहे हैं उस साइट्स पर, तो उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये सोर्सेज यूज़ करते हैं, मॉन्यूमेंट्स हुए या फिर इंस्क्रिप्शन हुए, कॉइन्स हुए, जिसके बारे में मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस। एंड देयर इज़ वन मोर सोर्स दैट इज़ नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। अच्छा, लिटरली मैंने बताया था ना 2 सोर्स होते हैं, वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड अदर इज़ लिटरेरी। तो लिटरेरी सोर्स बेसिकली वो सोर्स होता है जो हैंड रिटन फॉर्म में मिलता है या किसी रिटन रिकॉर्ड के फॉर्म में हमें मिलता है, दैट इज़ लिटरेरी source, I'm sorry, right? So let us talk about some other sources, like the explanation of some important sources, that is manuscripts and inscription. So let us know about manuscripts first. manuscripts क्या होता है, ये बुक्स होती हैं जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं, बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, राइट। और ये सब बुक्स जो होती हैं दे ऑल आर हैंड रिटन। So basically this term manuscripts has come from the word manu, means hand, right? So they were usually written on palm leaf or the specially prepared bark of a tree known as birch, which grow in Himalayas. Basically some specific trees की कुछ bark होती थी जो बेसिकली लिखने के लिए यूज़ की जाती थी, और वो उस टाइप के ट्रीज़ हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते थे, हिमालयाज़ में। ऐसा नहीं है कि हिमालयाज़ में ही मिलते हैं, बट ज़्यादातर कहाँ मिलते थे, हिमालयाज़ में, ठीक है। सो वहाँ से उन पर्टिकुलर ट्रीज़ की जो बाक होती थी, या फिर पाम लीफ कह सकते हैं, उन पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू वहाँ वो सोर्सेज यूज़ किए जाते थे लिखने के लिए, हैंड रिटन के लिए, राइटिंग द रिकॉर्ड्स, फॉर राइटिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन अच्छा, अब आई एम श्योर कि आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी हैं। तो बेसिकली अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें कि वो आज की डेट में है या नहीं, तो उसका आंसर है मोस्ट ऑफ देम। एक्चुअली मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये किस चीज़ में लिखी जा रही है, ये मैंने जैसा भी आपको बताया, पाम लीफ हुआ या फिर प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री हुआ, है ना। तो ये इस टाइप की चीज़ों में जो लिखी जा रही है, तो इंसेक्ट्स लग जाते हैं ऐसी चीज़ों में जल्दी, तो ये बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गए। बट स्टिल कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो से प्रिजर्व भी करके रखी गई, है ना। तो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखी गई थी उनके सब्जेक्ट्स क्या होते थे, हमें ये भी पता होना चाहिए किस बेस पे लिखी जाती थी, क्या होता था उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो देयर वर सम थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, है ना, कि उस टाइम किस टाइप के रिलीजियस या किस टाइप की बिलीफ होती थी पीपल के अंदर, किस टाइप की प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे। देन लाइफ्स ऑफ किंग, देन मेडिसिन एंड साइंस, एपिक्स, पोएम एंड प्लेज। एपिक्स का क्या मतलब है, जैसे रामायण महाभारत जो हम आजकल देखते हैं, तो हमें पता कैसे चला, क्योंकि ये भी हमें एक हैंड रिटन फॉर्म में मिली है और वो सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज। मीन्स संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, आप सबको पता है। प्राकृत बेसिकली मैं बताती हूँ इन तीनों में से। प्राकृत मीन्स लोकल लैंग्वेज, कि हम सिटी टू सिटी अगर मूव करें तो हम सबकी लोकल लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, राइट। तो अगर कोई पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो वो वहीं की आसपास की प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करके मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादातर लिखते थे, राइट। देन नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स तो किसी लीफ पे, किसी एक सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता था, ठीक है। हम थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम पेपर और पेन, तो हम लोग क्या एक मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में हम चीज़ें कर रहे हैं। बट इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर राइटिंग जो है वो हम एनग्रेव्ड कर देते हैं हार्ड सरफेस पे, ठीक है, जैसे मेटल पे या स्टोन पे उसको एनग्रेव्ड कर देते हैं। देन इंस्क्रिप्शंस लिखे क्यों जाते थे, किस बेस पे, तो
किंग्स के ऑर्डर्स होते थे मोस्टली। इंस्क्रिप्शन लिखने के पीछे का रीज़न एक होता था कि ऑर्डर्स ऑफ किंग्स, ज़्यादातर किंग्स ऑर्डर करते थे कि येस दिस पर्टिकुलर थिंग हैव टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन समथिंग, बिकॉज वॉट रीज़न क्या होता था उसका? रीज़न ये होता था कि इंस्क्रिप्शन जो है वो ईज़िली आप रिमूव नहीं कर सकते, ईज़िली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ईज़िली रब नहीं कर सकते। तो इसलिए किंग्स अगर कुछ उनको कुछ ऐसा करना है कि यस हमें किसी के बारे में हम चाहते हैं कि आज के ही लोग नहीं, आने वाले सब लोग जानें, तो वो कुछ चीज़ें इंस्क्राइब भी कराते थे। ऐसे ही इंस्क्रिप्शन में हमें और क्या क्या मिला कि पीपल जो होते थे, लाइफ ऑफ द पीपल, वो उनकी लाइफ कैसी होती थी। तो लाइफ ऑफ द पीपल में भी हम बात करेंगे किंग की लाइफ, क्वीन की लाइफ एंड अदर्स। देन विक्ट्रीज़ के रिकॉर्ड्स, जो बैटल में अगर विक्ट्रीज़ मिली तो उनको इंस्क्राइब करवा दिया जाता था, है ना। तो दीज वर दी थिंग्स जो इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही भेजूँगी। ओके, टिल द टाइम कीप स्माइलिंग।